Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Hilal Ahmed Hilal, and this is my second lecture on travel and tourism. And my today's topic is components of tourism. Components of tourism. So, what are the components of tourism? Actually, components of tourism are the parts of tourism that makes the mechanism of tourism industry work. So these components are also referred to as A's of tourism. A's of tourism. So now we will discuss these A's of tourism. Generally we discuss 4 A's of tourism. So sometimes we can say there are only 4 A's of tourism or so only 4 components of tourism. But sometimes we add 2 more A's to these components. One is, after that we will discuss, first we will discuss the 4 A's. So what is the first A? What is the first component of tourism? That is the attraction. Attraction. Attraction is also known as locale. Locale. So this is attraction. So how can we define, how can we discuss attraction? In last lecture, in lecture number 1, we discussed about the pull factor and push factor. So here also attraction means, attraction actually pulls. It pulls. Attraction pulls and attracts people towards particular product. This is the work of attraction. So what is attraction? अगर हम attraction को देखेंगे, attraction को किसी भी destination पे देखेंगे, because we are tourism professionals and whole world is destination for us. We are tourism professionals. We are living in the UT of Jammu and Kashmir. So this Kashmir is a destination for us. And every product, every product, and every beautiful scenery is attraction for us, or tourism professionals. It is actually for all people, but for tourism professionals. So this is the, every product is the attraction for us, every scenery is the attraction for us. So now what is the work of this? Actually this is the part, attraction is the important and active part of tourism. Because so attraction actually pulls, because at the attraction place, attraction pulls the people, attraction attracts the people towards what? Towards the destination, towards the product, So we have different types of attraction. और यहाँ पे हमें वो attraction को define करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन students को ये clear होने के लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताऊँगा कि attraction जो है, for example, we have natural attraction, we have man-made attraction, we have different types of attractions. If we will see the natural attraction, natural product is attraction, so we can make a big list. And when we see the man-made attraction, so we have also a big list about the man-made attraction. So natural attraction, in natural attraction we have nature, all, because what is nature? Attraction, to understand the attraction is very important for us to know the nature. So what is nature? Nature, what is nature? Nature is creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Nature is creation, it is creation of Allah. Creation of Allah. So nature is creation of Allah. But this creation is the attraction for we people. And in the creation of Allah, we have mountains, we have water bodies, we have plains,
we have foresters, we have potatoes, we have trees. In nature also we have fauna and flora. Fauna and flora, yes. We have wild animals. We have national parks. We have various natural features. So all species, all natural products, or we can say the creation of Allah. This is the attraction for us. This is the natural attraction for us. In natural attraction, we can make a list. Say here we have mountains. We have अगर हम माउंटेन्स को देखेंगे, माउंटेन्स में हमें और कौन कौन सी जो है कौन कौन सी अट्रैक्शन देखने को मिलती है. वी हैव ग्लेशियर्स इज ऑल्सो अ नेचुरल अट्रैक्शन. वी हैव waterfalls. So we can make a big list of natural attraction. And when we see the man-made attraction, man-made products or man-made attraction, we can also make a big list of man-made products or man-made attraction. For example, अगर हम जो है गुलमर्ग की बात करेंगे, गुलमर्ग में जो है गंडोला car cable is a man-made attraction, but it is also attraction. Many people throughout the world attract towards this particular product because it is man-made attraction. We have Nishad Garden, we have Mughal Garden, we have all hotels, we have heritage hotels. Those are also man-made. No, sorry, not heritage. Yes, but we have these are also called man-made attractions. So we have various man-made attractions. अगर हम पहलगाम जाते हैं, पहलगाम में JK बैंक ने वो पार्क बनाई है, that is also man-made attraction. So we have actually natural and man-made attractions. So what is the work of these natural as well as man-made attraction? To pull people towards the product. So this is the first component, or we can say the first A of tourism. This is the first A of tourism, first component of tourism. So this is attraction. So here pull factor जो हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे जो है पुल फैक्टर जो है एप्लीकेबल होता है. यहाँ पे पुल फैक्टर एप्लीकेबल होता है, चाहे माउंटेन हो, स्नो कैप्ड माउंटेन हो, ग्लेशियर हो, चाहे वाटरफॉल हो, चाहे गंडोला हो. जब भी लोग उस चीज़ की तरफ देखते हैं, इन प्रोडक्ट्स की तरफ देखते हैं, सो इट अट्रैक्ट्स. ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो कोई ना कोई डिसीजन लेता है, अंदर से उसको फिर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है. सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट दैट इज अट्रैक्शन. नाउ वी हैव one more A. Now we have second A, that is accessibility. What is accessibility? Accessibility actually means easy access for tourists. It is actually easy access for tourists. Accessibility जो है एक इंसान को एक्सेस करता है, ट्रांसपोर्ट करता है from one place to another. For example, we have number of destinations. So from one destination, from residing place to destination, from residing place to another destination. So we have to reach particular destination. So for this purpose, to reach particular destination, we have accessibility. And in accessibility, we have four modes of transport. Four modes or means. Four modes or means of transport. Four modes or means of transport for accessibility. So किसी इंसान को अपने घर से, अपनी रेजिडेंट प्लेस से किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, सो वो वहाँ पे देखता है कि इजी एक्सेस इसके लिए क्या है. अगर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी है, सो देन दे कैन यूज रोड ट्रांसपोर्ट. अगर एक्सेसिबिलिटी एयर ट्रांसपोर्ट की है,
तो एयर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेगा, अगर वाटर की है तो वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेगा, अगर जो है रेल ट्रांसपोर्ट की है तो रेल को यूज़ करेगा. सो 4 मोड्स आर एयर, रोड, रेल and water. These are 4 modes of transport. 4 modes of transport. So यहाँ पे हम इन 4 मोड्स को डिफाइन नहीं करेंगे. यहाँ पे हम खाली एक्सेसिबिलिटी में मैं आपको खाली ये बताना चाहता हूँ कि जब एक इंसान को अपने रिजर्विंग प्लेस से किसी डेस्टिनेशन पे जाना होगा तो इन 4 ट्रांसपोर्ट में से वो जो है उसके लिए जो अफोर्डेबल होगा, जो इसके लिए इजी एक्सेस होगा, तो वो इन 4 ट्रांसपोर्ट में से किसी भी ट्रांसपोर्ट को क्या करता है, जो है इसको यूज करता है और वो इजीली जो है उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है. सो रेल, एयर ट्रांसपोर्ट, road transport, rail transport, and water transport. So this is the second A, or we can say that this is the second component of tourism. Now we have third A. That is amenities. Or first we will discuss accommodation. Third, accommodation. So accommodation is the third A or third component of tourism. Third component, or we can say the third part of tourism, or third component of tourism. So accommodation, what is accommodation? Actually जो है accommodation हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं? देखो बेटा, accommodation जो है आपने टूरिस्ट की डेफिनेशन अगर आपने देखी होगी, टूरिस्ट की डेफिनेशन अगर आपने देखी होगी, टूरिस्ट की डेफिनेशन जो है, इससे पहले मैं आपको अकोमोडेशन थोड़ा सा मैं आपको देखो, टूरिस्ट जो है ना, टूरिस्ट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टूरिस्ट? टूरिस्ट ये हम सबको पता है, टूरिस्ट इज अ पर्सन who stays more than 24 hours at a place. बस हम इतना लेंगे क्योंकि जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो इतनी सी डेफिनेशन में है. सो टूरिस्ट इज अ पर्सन हु स्टेज मोर देन 24 आवर्स. तो टूरिस्ट हम उस इंसान को कहते हैं जो 24 घंटे से ज्यादा किसी प्लेस पे स्टे करेगा. सो हियर वन वर्ड, दैट इज स्टे. सो यहाँ पे ये स्टे करता है. अब ये किसी डेस्टिनेशन पे चला गया क्योंकि ये टूरिस्ट कैटेगरी में है, इसको रात को ठहरना है, इसको 24 घंटा ज्यादा भी वहां पे लग सकता है, तो इसको वहां पे स्टे करना है. सो फॉर द पर्पज ऑफ स्टे, सो वी हैव टू अकोमोडेट दिस टूरिस्ट एट अ पर्टिकुलर प्लेस. सो फॉर स्टे पर्पज, फॉर स्टेइंग पर्पज वी हैव अकोमोडेशन. फॉर स्टेइंग पर्पज वी हैव अकोमोडेशन. तो स्टे करने के लिए, क्योंकि टूरिस्ट की डेफिनेशन में ही स्टे है, क्योंकि ये उसी वक्त टूरिस्ट इस कैटेगरी में फॉल होता है, क्योंकि इसको स्टे करना है, ये टूरिस्ट है, 24 आवर से इसको ज़्यादा स्टे करना है, तो ठहरेगा कहाँ? तो उसके लिए जो है हमारे पास जो है अकोमोडेशन है. अब बहुत सारे जो है डेस्टिनेशंस है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन होती है. टूरिस्ट को वो इजीली अकोमोडेट करते हैं. इट डिपेंड्स डेस्टिनेशन कैसी डेवलप्ड होगी तो उस हिसाब से जो है वहाँ पे जो होता है वहाँ पे अकोमोडेशन होती है. नाउ हियर बस ये टूरिस्ट का ये मुझे इतना बताना. अब अकोमोडेशन को अगर हम देखेंगे, अकोमोडेशन में अभी जो है हम एडवांस्ड जो हमारा इस वक्त जो एडवांस्ड वर्ल्ड है, इस वक्त जो हम खाली अक्सर जो है होटल्स का इस्तेमाल करते हैं. इसका इस्तेमाल करते हैं होटल्स. लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अकोमोडेशन का देखेंगे, ये मुझे आप इस वक्त डिफाइन नहीं करना है, थोड़ा सा मैं आपको अकोमोडेशन का ये बताऊंगा. अगर हम एनिशिएंट पीरियड में चले जाएंगे, एनिशिएंट पीरियड में अगर हम थोड़ा सा चले जाएंगे तो हम देखेंगे कि एनिशिएंट पीरियड में किस चीज़ का इस्तेमाल होता था. फिर जो है जितनी डेवलपमेंट आ गई उतना इस चीज़ में भी डेवलपमेंट आ गई. इसीलिए जो है टूरिज्म को हम इंडस्ट्री कहते हैं.
टूरिज्म को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। क्यों इंडस्ट्री कहते हैं? क्योंकि इसमें एडवांसमेंट आ गई, इसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम वो भी अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस होगी, तो किसी न किसी लेक्चर में हम वो भी ये करेंगे, डिस्कस करेंगे कि टूरिज्म को इंडस्ट्री का नाम क्यों, इसको इंडस्ट्री का स्टेटस क्यों मिला। सो एकोमोडेशन को अगर हम थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे तो एकोमोडेशन में जो है एनिशियंट पीरियड में पहले जो है इन्स का इस्तेमाल होता था, इन्स का इस्तेमाल होता था। तो उस वक्त जो है इन्स का इस्तेमाल होता था। इन क्या होता था, ये बहुत बड़ा हॉल होता था, उसमें लोगों को एकोमोडेट किया जाता था। फिर जो है थोड़ा और बहुत सारे उस वक्त जो है एनिशियंट पीरियड में एक और एकोमोडेशन टाइप थी, जिसको हम कहते थे तवेरन्स। तवेरन्स तवेरन्स का इस्तेमाल होता था। ये भी एक कमरा जैसा होता था, इसका इस्तेमाल होता था। फिर जो है अब रिलीजियस जो है हमारा रिलीजन जो है, रिलीजियस हिसाब से जो अगर हम देखेंगे, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एकोमोडेशंस। सो अब हम रिलीजन को डिफरेंट मतलब इस हिसाब से नहीं लेंगे, हम एक थोड़ा सा लिस्ट इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप है एकोमोडेशन। क्योंकि एकोमोडेशन जो है स्टेइंग पर्पस के लिए है, तो इन्स स्टेइंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, तवेरनस इसके लिए इस्तेमाल होते थे। और सराइज मुसाफिर खानास, मोनिस्ट्रीज बुद्धिस्ट, जो बुद्धिज्म हमारा रिलीजन है उसमें इस्तेमाल होते हैं। मुसाफिर खाना जो है मुस्लिम या सराई जो है हिंदूज में इस्तेमाल होते हैं। मुसाफिर खाना, मोनिस्ट्रीज, तवेरानस, एनस, टेंट्स, अपार्टमेंट्स, मोटेल्स and hotels. So these are all types of accommodation. ये types हैं, accommodation के types हैं, ये है ये। तो इनसे भी इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते थे तवेरनस। अब ये फैसिलिटी के हिसाब से किसमें खाना दिया जाता था, किसमें खाली सोना होता था, तो वो तो डिफरेंट लेक्चर है। लेकिन खाली ये जो है ये खाली किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते थे? ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ एकोमोडेशन एंड टू accommodate tourists. तो नाउ हियर ये जो है अब होटल्स जो है, होटल्स आपने अब जो है इस वक्त हम देखते हैं we have different categories of hotels. We have first star hotels, second star, third star, fourth star, 5-star hotels. On the basis of facility we categorize those hotels and give them star. So that is the, but what is here I write motel. What is motel? What is the difference between hotel and motel? होटल और मोटेल में डिफरेंस क्या है? देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन होटल एंड मोटेल। मोटेल जो होता है, मोटेल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन हाईवेज। एक तो मोटेल्स हाईवेज पे होते हैं और होटल्स जो है हर जगह होते हैं, हर किसी भी डेस्टिनेशन पे आप जो है। लेकिन मोटेल्स जो है, मोटेल जो है हाईवेज पे होते हैं, रोड जंक्शंस पे होते हैं, और इनमें एक फैसिलिटी होती है जिससे हम इनको मोटेल की कैटेगरी में डालते हैं, दैट इज द गैरेज फैसिलिटी। ओनली वन डिफरेंस, दैट इज गैरेज। यानी कि मोटेल में जो है गैरेज फैसिलिटी होती है। अगर हमारी गाड़ी हाईवे पे ख़राब हो गई, हम इसको मोटेल में लेते हैं। मोटेल में जो है होटल की फैसिलिटी होती है, खाना है, सोना है, सारी चीज़ें हैं, और कार हमारी ठीक भी होती है। सो दिस इज बिटवीन, इसीलिए जो है जो मोटेल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? रोड जंक्शंस पे होते हैं, हाईवेज पे होते हैं। सो दिस इज मोटेल एंड होटल। तो ये तो पता है होटल किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अब जो है होटल्स को हम जो अब जितनी एडवांसमेंट आ गई, अब जो है मैरिज सेरेमनी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब जो है हर एक जो है अगर कोई जो है कंट्री गेस्ट आता है, कंट्री गेस्ट मीन्स किसी कंट्री का प्रेसिडेंट आएगा, तो हम उसको 5-स्टार होटल में या पर्टिकुलर किस होटल में उसको ठहराएंगे। सो दिस इज accommodation. This is accommodation. This is the third component of our tourism. This is the third component of our tourism. So now we have fourth. Fourth is amenities. 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 Amenity
इज एक्चुअली फैसिलिटी? एमिनिटी क्या है? एमिनिटी फैसिलिटी है। हम जो है अपने टूरिस्ट को कौन कौन सी फैसिलिटी देते हैं। अगर आपके पास ट्रैवल एजेंसी है तो आपको हर एक फैसिलिटी जो है अपने टूरिस्ट को देनी है। तो एमिनिटीज इज सिंपली फैसिलिटी, डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज। तो इन फैसिलिटीज में हमें जो है, इस फैसिलिटीज में टूरिस्ट को हम कौन कौन सी फैसिलिटी देते हैं। अगर आपके पास ट्रैवल एजेंसी है तो कौन कौन सी फैसिलिटी उनको दोगे। अगर आपका जो पैकेज है, मतलब ग्रुप है आपका, जो अगर वो फॉरेन जो है फॉरेन ट्रिप है तो उनको कौन सी फैसिलिटी दोगे। इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रैवल कौन सा है, उस हिसाब से हम उनको फैसिलिटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटी हम इनको देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में जो है अगर फॉरेन ट्रिप है तो हम इनको क्या करते हैं, वीज़ा देते हैं। वीज़ा, पासपोर्ट फैसिलिटी जो है, हाँ जो है। और अगर किसी टूरिस्ट को, मतलब अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो उसको तो फर्स्ट एड, फॉरेक्स, करेंसी एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं, करेंसी एक्सचेंज। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटी। फूड इनको देते हैं, शॉपिंग के लिए इनको कहीं जो है होटल पे ले जाते हैं। सो दीज आर द फैसिलिटीज, सो दिस इज द एमिनिटीज, दिस इज द एमिनिटी, एंड दिस इज द फोर्थ ए ऑफ टूरिज्म, दिस इज द fourth area tourism. So these kindness and these types of facilities we provide to our clients. So क्योंकि हमारे वो client होते हैं, हम उनको देते हैं. So this is the fourth area. और इसके साथ साथ हम जो है कभी कभार जो है फिफ्थ ए भी इसमें ऐड करते हैं. इसमें हम कभी sometimes we add fifth A and sixth A. Fifth and what is fifth A? That is activities. And what is sixth A? That is available package. So एक्टिविटी में क्या आता है, टूरिस्ट को हमने किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे ले लिया, अब वो डिफरेंट एक्टिविटीज वहाँ पे करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़, और उस पर्टिकुलर डिफरेंट एक्टिविटी से जो है एक्चुअली हमारा टूरिस्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दूंगा, हम कभी कभार क्या करते हैं, हम हमारे लिए कभी मतलब फॉर एग्जांपल हम हमारी पैकेज कभी कभार जो है एक्टिविटी बेस्ड होती है। तो एक्टिविटी बेस्ड जब हमारी पैकेज होती है ना, तो उसमें मिसाल के तौर पर हम यहाँ कश्मीर में गुलमर्ग टूरिस्ट को ले जाएंगे विंटर्स में। तो विंटर्स में हम इसलिए उनको लेते हैं ताकि हम उनको वहाँ पे सिकिंग दिखाएं, तो सिकिंग एक्चुअली इज एडवेंचरस टूरिज्म, एंड एडवेंचरस टूरिज्म इज आल्सो एक्टिविटी, इट इज एक्टिविटी। समर्स में हम उनको कहीं क्रिकेट फील्ड में ले जाते हैं, क्रिकेट इज एक्टिविटी एंड इट इज एडवेंचरस एक्टिविटी, और एडवेंचरस एक्टिविटी जो है इट इज सो एक्टिविटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। टूरिस्ट्स को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज देते हैं एट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। कभी वो क्रिकेट खेलते हैं, कभी कोई और चीज करते हैं। सो वी हैव डिफरेंट, सो समटाइम्स वी ऐड फिफ्थ ए to our components. So activities, different types of activities. टूरिस्ट बहुत सारे एक्टिविटी जो है किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे बहुत सारी एक्टिविटी करता है। एंड अवेलेबल पैकेज कि आपके पास कौन सी पैकेज है। अब इट डिपेंड्स अपॉन द सोसाइटी, इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट ऑफ सोसाइटी। एनवायरनमेंट कि इस वक्त जो है हम देखते हैं, मेरे पास एक ट्रैवल एजेंसी है। अब मैंने देखा कि सोसाइटी में मेरी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो मैं जो है अपने पैकेजेस को कैटेगराइज करता हूँ। कभी एडवेंचरस पैकेज को जो है ऑफर करता हूँ, कभी पिलग्रिम पैकेज को ऑफर करता हूँ, कभी जो है दूसरी पैकेज को ऑफर करता हूँ, डिपेंड्स, कभी रिलीजियस पैकेज को ऑफर करता हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है पैकेजेस हमारे पास होती हैं, तो उनको तो समटाइम्स वी ऐड दीज पैकेजेस टू आवर कंपोनेंट्स। क्योंकि जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा टूरिज्म जो है, जब हम इन दो एज को ऐड करते हैं ना अपने टूरिज्म में, अपने कंपोनेंट्स में, तो हमारा टूरिज्म जो है ज़्यादा साउंड हो जाता है। तो पैकेजेस में हमारा पीक सीज़न और लीन सीज़न भी होता है। पीक सीज़न क्या होता है कि पीक सीज़न में हमें ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और लीन सीज़न जो हमारा होता है वो उसमें क्या होता है, उसमें जो यानी कि ऑफ सीज़न जो हमारा होता है उसमें, तो उस हिसाब से हम पैकेजेस देते हैं। यानी कि जो ऑफ सीज़न हमारा हो गया, ऑफ सीज़न में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ करी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हम ऑफ सीज़न में करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस वक्त देखेंगे
इस वक्त जो है, इस वक्त पीक हाई जो सीज़न क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब पीक सीज़न है इस वक्त। अगर हम समर में देखेंगे पीक सीज़न होता है, टूरिस्ट आते हैं वहाँ से यहाँ से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो अवेलेबल पैकेज रखते हैं हम कि जो है वहाँ पे जो है गोल्फ है, ये है, वो है, साइट सीन्स है, तो लोग आते हैं वो पैकेजेस को ऑप्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन विंटर्स में हम क्या करते हैं, वी ऑर्गेनाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स। या ऑफ समर्स में भी कभी कभार क्या होता है, ड्यू टू अनरेस्ट, ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस, हमारा जो कंडीशंस खराब होते हैं, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, वी ऑर्गेनाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स। So we can say artificial events as well, or we organize different types of festivals. हम फेस्टिवल भी कभी कभार क्या ऑर्गेनाइज करते हैं, या हम जो है एग्जीबिशन रखते हैं, सो दैट हमारा जो पीक सीज़न होता है, प्री पीक सीज़न होता है, वो हमारा पीक सीज़न क्या हो जाए, वो हमारा पीक सीज़न वह उसमें जो, क्योंकि ये हम इंशाल्लाह जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारे इसमें एक जो होता है लीन सीज़न और पीक सीज़न जो है, इसके लिए हमारे पास ग्राफ है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जब हम अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो वो उसको वो मैच्योरिटी पे आता है, उसको मैच्योर स्टेज कहते हैं। तो मैच्योर स्टेज जो है जब बरकरार रहेगा, मैच्योर स्टेज मीन्स कि हमारा पीक सीजन है हमारे, तो उसके साथ साथ जब उसमें जो है डिक्लाइन स्टेज आता है, तो यहाँ पे डिक्लाइन स्टेज आता है, सो वी नीड टू मॉडिफाई हियर, यहाँ पे हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, आपने मार्केट में कॉलगेट देखा होगा, कॉलगेट टूथपेस्ट। अब कॉलगेट जो है वो रन हो रहा है, प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, सारे ले रहे हैं, लेकिन अचानक से जो है मार्केट सर्वेयर जो है, कॉलगेट के मार्केट सर्वेयर जो है, उनको लगा कि जितनी डिमांड कॉलगेट की थी वो कम हो गई, क्योंकि मार्केट में जो है इसके कंपटीशन में पेप्सोडेंट भी आ गया, इसके कंपटीशन में और एक जो है सेंसोडेंट भी आ गया। अब कॉलगेट वालों ने क्या किया, कॉलगेट वालों ने इसमें वाइट क्रिस्टल्स को ऐड किया, वाइट क्रिस्टल्स को ऐड किया। तो वाइट क्रिस्टल्स एक्चुअली व्हाट इज दैट, व्हाट इज द पर्पस टू ऐड दोज वाइट क्रिस्टल्स इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक्चुअली जब उन्होंने सर्वे किया, उनका मेच्योर स्टेज चल रहा था, तो उनको लगा कि डिक्लाइन स्टेज आ रहा है, सो दे मॉडिफाई देयर प्रोडक्ट। क्रिस्टल ऐड करने से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को क्या किया, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया, किससे बचने के लिए, डिक्लाइन स्टेज से बचने के लिए, डिक्लाइन स्टेज से बचने के लिए। तो हम जो है पीक सीजन और लीन सीजन में क्या करते हैं, अवेलेबल पैकेजेस रखते हैं। सो दिस इज द अवेलेबल पैकेज एंड these are the components of tourism. I hope you understand. इंशाल्लाह आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम और भी मैं टॉपिक्स के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।